JT team for putting up this bone health camp. This is your first step towards self love. As women, we forget that we also exist. We forget that our health is important. We forget it is important for us to look good and feel good. Only then we can serve our entire family or extended family and look after everybody. I think whole of this woman role, in particular is overrated, I think. And we have probably put on a pedestal saying, ye to aapko karna hi hai, only then you're a good mother, only then you're a good wife, and only then you're a good daughter-in-law. So many hats we keep wearing. But in this whole thing, we forget that we also need to take care of ourselves. And probably I was also brought up with very, very strong conditioning that the family comes first, in-laws come first, and children come first, and then yourself. Yourself should be last. It took me quite a while to decondition myself and say, no, I'm also important. No, I need to do this for myself. And I've gone through a lot of struggle to do this, and I'm sure a lot of you will agree with me. So it's a great thing that you've joined this camp, and you need to take care of yourself, and your health is very, very important. And I'm sure you're going to have a very excellent 1 hour listening to our team and to understand how to take care of yourself. But I'm sure Sanjeti team is going to come up with many more things like self-love, how to take care of your exercises, how to take care of your diet. And I would really like to congratulate all of you and Sanjeti team. Thank you. Have a great 2-hour session. धन्यवाद मनीषा मैम। अच्छे स्वास्थ्य की तरफ हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए And it is very truly said that to ensure a healthy family and to care for the entire family, the woman of the family has to ensure good health first. Therefore, we want to introduce two of our unique ventures, the GRC, that is Geriatric Rehab Club, especially designed for the people above 60 years of age. It's a 3-month exercise program, completely online based. I request Dr. Venu Mohan to kindly play the short video clip of the same. Also, the physiotherapy department of Sancheti Institute is to launch a specialized program for women between 40 to 60 years to take care of their bone health through exercise and dietary guidance. Going with the times, we have made all these health initiatives purely online for better access to all of you in COVID times. हमारी ये दो इनिशिएटिव्स पहले जो कि 40 से 60 साल के अंदर की उम्र के लोगों के लिए और दूसरी जो 60 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए बनी है, पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप इस देश में जहां से भी हैं रजिस्टर कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये डिटेल्स इस कैंप के बाद फिर से शेयर करेंगे। अब शुरू करते हैं हमारा बोन हेल्थ कैंप। भारतीय नारी, even though the epitome of hard work, patience, love, care, still, as we all know, a mother's job is always a thankless job.
So now let us hear it from our own Dr. Nikita Dodwar Desai, Assistant Professor at Sancheti College of Physiotherapy and a specialist in musculoskeletal physiotherapy, on how we can thank our mothers, kakis, nannies and dadis by timely identifying factors affecting their bone health and take timely action for the same. Nikita ma'am has done her bachelor's from SDM PT College Dharwad and her master's from Padma Shri Institute of PT Bangalore. Namaste Nikita ma'am. Please begin with the first talk of today's session. नमस्ते, मैं निकिता दौड़वाड़ आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्रभाग में, जिसे हम कहते हैं भारतीय नारी और बोन हेल्थ। जैसे अभी डॉक्टर सुरोश्री ने कहा कि भारतीय नारी जैसे इस एपिटोम कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है त्याग या दूसरों की केयर करना, दूसरों की रक्षा करना। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जगहों में अपना खुद का केयर करना भूल जाते हैं। ऐसे तो हमने हर अपने फैमिली में देखा ही होगा, अपनी माओं को, अपनी चाचियों को, अपनी बुआओं को करते हुए। जैसे हम बताएंगे कि an Indian woman does cares to such an extent that she can forego her sleep, she can forego her hunger and she can even forego her health. जी नहीं, ये एक नारी मोर्चा का कोई आह्वान नहीं है, बट हाँ, ये हमेशा सच कहा जाता है कि एक नारी अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए बहुत सारे त्याग कर देती है। और जैसे आप इस चित्र में, इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि एक भारतीय नारी बाहर का काम भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, खाना भी बनाएगी और सबकी सेहत का ध्यान भी रखेगी। हाँ, पर इन सब चीजों में वो ये भूल जाती है कि खुद की सेहत भी उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि उसकी परिवार वालों की। अब हम इसमें आगे में ऐसे देखेंगे कि एक एक चीज, एक एक कारण जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे, उनके बोन हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप, most of you will know who this is. This is Indira Nooyi, the CEO of PepsiCo. ये इंदिरा नोई जी है जो पेप्सिको, हमारा सबसे प्यारा कोल्ड ड्रिंक, उसकी सीईओ है उस कंपनी की। तो जब उनको सीईओ बनाया गया, जब वो ये खुशखबरी लेके घर पहुंची, तो उनकी माँ ने कहा, चाहे जितना आप बड़े पोजीशन में चले जाओ, ये मत भूलना कि तुम एक माँ हो, एक बीवी हो और एक बेटी हो। वो इस कॉन्वर्सेशन से वो इतनी इफेक्ट हो गई कि उनको बोला गया कि आप चाहे जो कर लो, आप पूरी कंपनी खुद से चला लो, लेकिन जब आप घर आओगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरे परिवार का ख्याल रखो, उनकी सेहत का ख्याल रखो और उनके लिए खाना भी बनाओ। तो ये शायद हमारे लिए हर एक परिवार में, हर एक महिला का ये उनकी कहानी है कि चाहे जो भी हो, बाहर जितनी भी अचीवमेंट्स कर लो, घर आके आपको ये इससे एक्सपेक्ट होता है कि आप खाना बना लो। ठीक है, आजकल के जनरेशन में, आजकल जमाने में ये बदलाव आ रहा है कि हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं फैमिली को और इक्वल रोल भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जहाँ इक्वल या फिर घर की महिला को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो जैसे ये शीर्षक जाता है इस प्रभाग का कि भारतीय नारी और बोन हेल्थ, ये हम लोग सारी महिलाएं, उनकी बेटियां हो सकती है, उनकी माएँ हो सकती है, ये भी भूल जाते हैं कि उनका हेल्थ, उनकी सेहत पहले आती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे और अपनी परिवार का ध्यान रख सके। जैसे हम ये न्यूट्रिशन, खाना, आपका पोषण, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके बोन हेल्थ के लिए। जब भी हम बोन हेल्थ की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते नहीं कि हमारा डेंसिटी कभी कम हो,
ये एज के हिसाब से कम होता ही है। जैसे हम जानते हैं कि आपके एडोलेसेंस या फिर आपकी टीन एज में जो 13 से 19 का एज होता है, वहां पे हमारी न्यूट्रिशन की डिमांड ज्यादा भी होती है और हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा भी होता है। जब 30 के बाद एक स्त्री एक बच्चा पैदा कर लेती है या फिर अपने फैमिली में ज्यादा ध्यान देती है, तो उनकी न्यूट्रिशन पे काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले अपने परिवार वाले खा लें, उनको पहले परोस दे, जो बचा कुचा है वो हम खा लेते हैं। जिससे हमें पता है कि बहुत सारी जो कल बनाई चीजें, कल बनाई हुई सब्जी, कल बनाए हुए चावल, वो हमेशा घर की महिलाओं पे ही आता है कि वही खत्म करेंगे। जबकि हम ये जानते हैं कि जैसे ही हम एक खाना पुराना हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर उसमें जो पोषण हमें नेसेसरी होता है वो मिलता नहीं है, और ऐसे ही सारी महिलाएं अपना पेट भर लेती है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट आता है कि वो कितना दूध पी लेते हैं एक दिन में। जब भी ये एक सर्वे में बताया गया कि स्पेशली इंडियन वुमेन या भारतीय नारियां दूध पीना एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन या इम्पोर्टेंट पोषण नहीं समझते हैं। इसके बारे में हमारे डाइटिशियन और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऑन अ डेली बेसिस रोज दूध नहीं पी पाते हैं। इसकी वजह से उनके कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक भी और एब्जॉर्प्शन भी काफी कम हो जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स जो हम लोग बोलते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब हम सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखते हैं। कुछ त्योहार था, किसी का बर्थडे था, खीर में डाल दिया या फिर कभी कभी कुछ शाही पुलाव में डाल दिया। तो महिलाओं के लिए यही एक सोर्स होता है कि वो अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट्स, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर पाए। पर जब हम लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन के लिए है, वो ऑन अ डेली बेसिस पूरा नहीं हो पाता है। ओके, तो अगला एक फैक्टर होता है जो अब हमारे बोन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो है लो वेट या हाई वेट। सो हम जानते हैं कि मोटापा हमेशा अच्छा नहीं होता, बट हाँ, यहाँ पे शायद ओबेसिटी अच्छी नहीं है, बट हाँ, स्टडीज और रिसर्चर्स ने बताया है कि अगर बॉडी ओवरवेट में जाती है तो ये एक्चुअली हमारे बोन हेल्थ या फिर हमारे बोन डेंसिटी को प्रमोट करता है, या उससे उसकी सहायता से हमारे बोन्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जबकि हम लो वेट की बात करें या अंडर वेट की बात करें, हम जानते हैं कि अंडरवेट या माल नरिश्ड या माल नरिशमेंट जो कहा जाता है, वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता। आपके मसल्स के लिए, ना कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स जो बोलते हैं, आपके हार्ट, आपके लंग्स या फिर आपके स्टमक के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपके बोन्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। ऐसा भी होता है कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाए, या फिर आप फ्रैक्चर्स के लिए ज्यादा प्रोन हो, मतलब फ्रैक्चर्स आप में होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि महिलाएं एज फिजियोलॉजिकल बीइंग्स, बायोलॉजिकली हमें ये स्ट्रेंथ दिया जाता है कि हम चाइल्ड बेयर कर सके या फिर डिलीवरी बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। माना कि ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन हमारे बोन्स इससे काफी स्ट्रांग होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम इंटेक या फिर कैल्शियम और विटामिन डी की इंटेक काफी ज्यादा मात्रा में नेसेसरी होता है, जो मोस्ट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन एडवाइस भी करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को लेने के लिए। तो ये सिर्फ जो गर्भवती है सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये उनके गर्भाशय में पलने वाले बच्चे के लिए भी होता है, जिसे कहते हैं हम फीटल न्यूट्रिशन। तो इन दोनों चीजों के लिए प्रेगनेंसी में जैसे दूध ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, दूध की ज्यादा मात्रा में सेवन करनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में हमें अगर आप एग्स खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, एग खा पाते हैं, तो वो भी ज्यादा सेवन करना चाहिए, जिसकी मदद से दोनों गर्भवती को और उनके गर्भाशय में पलने वाले बच्चों को भी हेल्पफुल होता है। ऐसे स्टडीज में कहा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो अंडरवेट पैदा हुए थे,
वो बड़े होने के बाद उनकी बोन स्ट्रेंथ में काफी फर्क पड़ा है, जबकि वो नॉर्मल वेट बच्चों से अगर हम कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की या फिर गर्भ निरोधक गोलियां जो नॉर्मली ली जाती है, इनके सेवन से, इनके बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के सेवन से ऐसे रिसर्चर्स ने रिजल्ट्स पाया है कि ये भी हमारे बोन पे इफेक्ट कर सकता है ज्यादा देर तक लेने का। इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप बंद कीजिए और दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके हैं या गर्भ निरोधक तरीके हैं वो यूज कीजिए, या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, और अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जाना है वो भी आप बात कर सकते हैं, या फिर आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बदल भी सकते हैं। अगली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हर एक फीमेल की एक निंदा भी है और ये खुशी भी होती है कि अब वो बायोलॉजिकली रेडी है फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा दिनों तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पा रहा, या फिर हम कहते हैं कि मंथली साइकिल्स जो होते हैं, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी उनके मंथली साइकिल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक क्या बोलते हैं, चिंता का कारण बन सकता है, जहाँ पे रिसर्चर्स ने पाया है, रिसर्च पाया है कि उनके बोन हेल्थ पे, उनके बोन एब्जॉर्प्शन या विटामिन डी एब्जॉर्प्शन पे काफी फर्क पड़ता है। उनके बोन्स फ्रैक्चर में ज्यादा प्रोन होते हैं, उनमें फ्रैक्चर्स होने की ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए अगर ऐसा हुआ है, अगर आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज उनके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट, अगर हम बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बोन हेल्थ पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है जो फिजिकल एक्टिविटी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग इसमें स्पेशलाइज भी करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स भी दिए हैं, आप जान सकते हैं कि पहला पिक्चर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। हम जानते हैं कि ना कि सिर्फ शारीरिक तरीके से पर मानसिक तरीके से भी वो काफी स्ट्रांग थे या काफी शक्तिशाली थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो हमें स्ट्रेंथनिंग पे या फिर हमारे स्नायु के या फिर हमारे मांसपेशियों के ताकत बढ़ाने पे भी ज्यादा फोकस करना है। इस बारे में हमारे एक्सपर्ट्स और बातें करेंगे आगे, लेकिन आप ये भी एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। तो बैलेंस ट्रेनिंग की जब बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, बैलेंस ट्रेनिंग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम जानते हैं कि बैलेंस में हम लोग थोड़े चूक जाते हैं या फिर गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमें उसके लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है। अगर आप 60 अबव हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बूढ़ा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको भी बैलेंस ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। और अगला पॉइंट जब हम बात करेंगे फॉल प्रिवेंशन की, जब हम जानते हैं कि आप ऑलरेडी 60 अबव है, 70 अबव है, कि आपके मसल्स ऑलरेडी इतने स्ट्रांग नहीं हैं, या फिर आप जब भी चलने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि आप थोड़ी देर में गिर भी सकते हो। ऐसे टाइम पे फॉल प्रिवेंशन जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। ऐसा है कि आप जहाँ रहते हैं आपके घर में ऐसी एनवायरनमेंट बना के रखिए जहाँ पे शायद हमारे जो टाइल्स है वो इतने स्लिपरी ना हो कि जिसमें आप फिसल के गिर जाए, या फिर आपको बहुत हड़बड़ी में काम करना है तो आप अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर दे। अगर आप किचन में बहुत ज्यादा काम करते हैं या फिर आपको बहुत लोगों के लिए काम करना है, तो आपके किचन प्लेटफॉर्म का हाइट भी आप चेक कर लीजिए। और जब भी आप बाथरूम भी यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका बाथरूम का जो फ्लोर है वो ज्यादा पानी से ना हो, पानी पानी ना हो, जिसमें आपकी गिरने की संभावना बढ़ सकती है। और जब भी आप रात में उठ के पानी पीते हो या फिर वॉशरूम यूज करते हो, आप ये एक पॉइंट बना के रखिए कि आपकी लाइट या फिर एक छोटी सी लाइट ऑन रहे जहाँ पे आप पूरा रास्ता देख पाए आपके बाथरूम तक। और एज फीमेल्स, एज लेडीज, हमें बहुत पसंद है हाई हील्स पहनना। इसमें हम ऊंचे दिखते हैं और इसमें हमारी पोस्चर भी काफी अच्छी होती है। हम यहाँ पे रिसर्चर्स ने पाया गया है कि रिजल्ट्स देखा है कि हाई हील्स पहनने पे
ना कि सिर्फ आपकी बोन डेंसिटी पे इफेक्ट होगा, बट इसकी वजह से काफी सारी डिफॉर्मिटीज भी होते हैं, जैसे हेलिक्स वैल्गस हम बोलते हैं, जो आपकी बड़ी अंगूठी होती है पैर की, वो भी काफी मुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल चलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं इसमें मेंटल हेल्थ की, ये अभी काफी चर्चे में आया है, जैसे जैसे हम ये पैंडेमिक में जा रहे हैं, जैसे जैसे कोरोना वायरस की काफी चर्चा होती जा रही है, घर पे सब लोग कैद है, बाहर नहीं घूम सकते, तो इसमें मेंटल हेल्थ का काफी इफेक्ट होता है, क्योंकि आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं सकते, या फिर अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकते, या फिर जो नॉर्मल हमारी किटी पार्टीज होती थी वो भी आप अटेंड नहीं कर पाते। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं कि मेंटल हेल्थ जब भी हम बात करते हैं, ये डिप्रेशन भी हो सकता है, ये एंजाइटी भी हो सकता है। सो इसमें पाया रिसर्चर्स और काफी स्टडीज में ये बताया गया है कि जब भी एक एक महिला डायग्नोस करती है या फिर डायग्नोस की जाती है कि उनको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, पहली चीज ये होती है कि उनमें काफी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। और यहाँ पे बाहर धूप में घूमना या फिर गार्डन में वॉक लेना काफी फायदेमंद पाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बोन मिनरल डेंसिटी की। तो बोन मिनरल डेंसिटी भी काफी कम जाते हुए पाई गई है, जहाँ पे लेडीज डिप्रेस्ड है या फिर वो अपने दिनचर्या में काफी एंशियस होती है या फिर हमेशा स्ट्रेस में रहती है। तो जब हम बात करेंगे कि ऑलरेडी कोई अगर डायग्नोज है डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए, तो उनके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स वो लेते हैं या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो लेते हैं, उनके काफी लंबे समय तक सेवन करने पर भी आपके बोन हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है, और पाया गया है कि ये भी एक कारण हो सकता है उनके बोन मिनरल डेंसिटी कम होने का। ठीक है, जैसे कि अब बात करते हैं बुरी आदतों की, या फिर आदतें जो अगर बहुत दिनों तक आप पालते हैं तो वो बुरी बन सकती है। तो जैसे है स्मोकिंग या धूम्रपान का सेवन या फिर अल्कोहल। तो इसमें क्या हो जाता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में पाया गया है कि विमेन स्मोकर्स या महिलाएं जो स्मोक करती है, धूम्रपान का सेवन करती हैं, वो काफी मात्रा में बढ़ चुकी है। सो 13 से 17% जो विमेन स्मोकर्स है उनका उनकी आंकड़े बढ़ गए हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को लीजिए, आप धूम्रपान लीजिए या फिर अल्कोहल लीजिए या फिर गुटखा या टोबैको च्यूइंग भी ले लीजिए, इन सब के सेवन का विमेन में, बिकॉज हमारे यहाँ हार्मोनल लेवल्स काफी वेरिएट होती रहती है ऑन अ मंथली बेसिस, जैसे वो मासिक धर्म जो होता है या फिर पूरे महीने का जो हमारी साइकिल होती है, उसमें काफी इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से मोटापा, थायराइड इश्यूज या फिर बोन डेंसिटी या फिर बोन हेल्थ या फिर फ्रैक्चर होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है उन महिलाओं में। एक और चीज, स्लीप या फिर नींद, ये सारी महिलाओं का एक कंसर्न होता है कि उनको सुबह उठ के जल्दी खाना बनाना है, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए डब्बा रेडी करना है या फिर खुद के लिए भी डब्बा रेडी करके उनको जाना होता है। तो ऐसा होता है कि वो काफी जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे, 4:30 या फिर 5 बजे भी सुबह। इसके बाद उनका पूरा दिनचर्या या फिर हम कहते हैं पूरा डेली लिविंग ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा ही जल्दी उठने के कारण एक स्लीप डेट में चले जाते हैं, या फिर उनकी एक हमेशा क्या बोलते हैं कमी रहती है उनके नींद में। तो इसकी वजह से क्या होता है, शायद वो काम करते करते लेट भी सो जाए, और जो सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना होता है उसकी वजह से जल्दी भी उठ जाए। तो ये नींद उनकी नींद की कमी कभी पूरी हुई होती ही नहीं है, जिसे हम स्लीप डेट कहते हैं। तो अगर आप दिन में 1 घंटा आपकी नींद कम होती जा रही है, तो वो पूरे हफ्ते में ऐसे बढ़ बढ़ के 6 घंटे की आपकी स्लीप डेट बताई जाती है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल पीस नहीं हो पाती, आप जो खाते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी आप तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आपकी बोन्स या फिर आपके मसल्स भी काफी वीक हो जाते हैं, बिकॉज उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती और उनकी रेस्ट पूरी नहीं हो पाती। अगर हम बात करेंगे कि कोमॉर्बिडिटीज की, आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड इश्यूज इतने कॉमन हो गए हैं कि उनकी दवाई लेना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। तो अभी हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्योंकि इतने ज्यादा मेडिसिन ली जा रही है, उनके एब्जॉर्प्शन पे जो हमारे
जो हमारे स्टमक से होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से उनके एक्टिंग, उनकी पूरी जो उनकी रोल होता है हमारे बॉडी में, जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स का होता है कि वो इंसुलिन कंट्रोल में रखे या फिर इंसुलिन दे। हाइपरटेंशन के ड्रग्स का होता है कि वो अपनी ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लिमिट में रखे। थायराइड के ड्रग्स जो भी थायराइड के मेडिसिन जो भी ली जाती है, उनका भी काम होता है कि वो नॉर्मल लिमिट में हमारे थायराइड लेवल्स रखे। जब इन सब चीजों को लेते हुए इसे काफी नॉर्मली पॉलीफार्मेसी कहा जाता है। जब आप बहुत सारी एलिमेंट्स के लिए या फिर बहुत सारी रोगों के लिए आप एक मेडिसिन लेते हैं, जो काफी टाइम आपको लेना पड़ता है, काफी ड्यूरेशन तक आपको लेना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपने बोन रिजॉर्प्शन, मतलब जैसे जैसे आप 30 अबव जाते हैं, आपकी उम्र 30 के आगे होती है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये बोन मेटाबॉलिज्म में काफी इफेक्ट करता है। अगर हम अगली बात करें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये काफी कॉमन है, जो मेनोपॉज या फिर जिनकी मेनोपॉज हो गई है या फिर होने वाली है, उनको दी जाती है, ताकि उनके बॉडी में हार्मोन की कमी की वजह से उनके और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पाया गया है कि जब भी उनको एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स दिए गए हैं या फिर उनके रिप्लेसमेंट्स होते गए हैं, उनकी बोन डेंसिटी काफी बढ़ती गई है। तो इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट से जब भी मेनोपॉज होता है, ये काफी फायदेमंद होता है बोन्स के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं नीता अंबानी को, उनका ये कहना है कि एज एन इंडियन वुमेन, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करते हुए हम काफी जगलिंग करते हैं। कभी कभी वो ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए वापस आ जाती है, जैसे आपकी कोई काम आज नहीं हो पाई, वो कल आके आप ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज है कि आपके बच्चों का कोई रिसाइटल था या फिर कोई कंपटीशन था, आप नहीं जा पाए, तो वो ग्लास बॉल बन जाता है। तो कुछ रबर बॉल्स वापस बाउंस बैक हो जाते हैं, कुछ ग्लास बॉल्स होते हैं जो टूट ही जाते हैं, बट ठीक है, ये हमेशा हम बैलेंस करते ही रहते हैं महिलाओं के हिसाब से। बट ये सब करते हुए हमें ये नहीं भूलना है कि प्रायोरिटाइज करना या फिर जो ज्यादा महत्व की चीजें हैं, उन्हें पहले खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके खुद की सेहत। ये ऐसे कहावत है हिंदी में कि खाली घड़ा किसी को नहीं भर सकता, जब घड़ा भरा हुआ होता है तभी वो और चीजों को भर सकता है। ये बोलते हुए मैं आज का ये प्रभाव समाप्त करती हूँ। Thank you, Dr. Nikita. Well, we salute all the beautiful ladies in our life for making our lives easier each day. परिवार के औरतों को हर दिन अपने शरीर की हड्डियों की सेहत की तरफ एक कदम बढ़ाना अनिवार्य है। Now, Dr. Nikita, we have a question for you. आपके लिए एक सवाल है हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। आपने हमें बताया है बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेंथ, मोटापा, कोमॉर्बिडिटीज, बट अगर आपको पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा फैक्टर है जिसको हमेशा सबसे पहले और सबसे जल्दी हमें टैकल करना चाहिए, तो डॉक्टर सुरोश्री, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज होती है न्यूट्रिशन, जो हम लोग नॉर्मली इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे न्यूट्रिशन सिर्फ आपके पैदा होने के बाद का नहीं होता है, ये फीटल न्यूट्रिशन, मतलब जब कोई गर्भवती है, उनके न्यूट्रिशन में भी हमें काफी फोकस करना पड़ता है कि वो न्यूट्रिएंट्स उनके गर्भ में पलते हुए बच्चे को भी जाए, और वहां से वो पूरा साइकिल चेंज हो जाता है कि जैसे हमने बताया कि लो बर्थ वेट होने के कारण उनके लेटर लाइफ में काफी ज्यादा उनको इफेक्ट होता है बोन हेल्थ के हिसाब से, उनके बोन्स काफी वीक पाए गए हैं। और अगेन मैं सेम कहना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, from pregnancy to the fetal nutrition to early childhood throughout your life. Thank you so much once again, Dr. Nikita.
Now we move on to the most young and dynamic orthopedic surgeon of Sancheti Institute of Orthopedics and Rehabilitation, who will enlighten us with how strong really our bones are. Dr. Sahil हमसे osteoporosis के बारे में विशेष ज्ञान बांटेंगे. Dr. Sahil Sanghvi is an orthopedic surgeon practicing at SIOR Pune. He was awarded the diploma SICOT degree, which he received at Cape Town, South Africa. He is a hip and knee replacement surgeon and has published research papers in esteemed journals. So let us hear it from the expert himself, Dr. Sahil Sanghvi. Thank you, Dr. Surashri. Is my screen visible? Yes, sir. A very good morning to one and all. I'm Dr. Sahil Sanghvi, and today I'll be talking to you about a common condition called as osteoporosis. So what is the meaning of osteoporosis? Osteoporosis is a Latin word which means porous bones. So in osteoporosis, the bones become weak and brittle. So in other words, osteoporosis means fragile and weak bones. So a common question that many patients ask us in the OPD is that what is the difference between osteoporosis and osteomalacia? So let me give you this example to explain the difference. The brick wall that you see on the left side, which is made up of red bricks, imagine that to be how your bone is structured. So if there are 100 bricks in that wall and the number of bricks reduces to 50, so the quantity of the bricks when it reduces, that is known as osteoporosis. So the density of your bones reduces in osteoporosis. Whereas in osteomalacia, the same number of bricks are there, but their quality is bad. And that condition is called as osteomalacia, which is a qualitative disorder. Now, there are two major risk factors for osteoporosis. There are two major risk factors for osteoporosis. The first one is age, and the second one is menopause, both of which are not in your control as they're a natural part of your life. So why are women affected more with osteoporosis? So after menopause, which is when the menstrual cycles or your periods are no longer occurring, the estrogen in your body is normally responsible for bone strength. But after menopause, this major hormone, which is called as estrogen, reduces in quantity in your body. And this decline in estrogen leads to weakening of your bones, and that is what is known as osteoporosis. So it is said that after the age of 50, when menopause approximately starts, 1 in 3 women and 1 in 5 men will experience fractures due to osteoporosis. And women are 4 times more likely to develop this condition than men because of age factor also and the menopause factor, which is why there is a higher incidence in women. So why should you be concerned about osteoporosis? The most common complication of osteoporosis is fractures, or a condition where your bones break, which we call in medical terms as a fracture. And this commonly occurs in the spine, in the hips, or in your wrists. And because of this, you are also at an increased risk for future fractures. So what are the problems that osteoporosis causes? So as I mentioned, that because your bones become weak, even you have a minor fall or a trivial injury, like you just fall from the sofa or the chair, you will still end up having a fracture, which will not be seen if a younger person has the same injury. And many a times, patients with severe osteoporosis can even have fractures because of aggressive sneezing, coughing, or even when they are traveling in cars or buses on a road with many speed breakers or potholes. Even these minor impacts can cause fractures in patients with osteoporosis.
Now, osteoporosis is known as the silent disease, which is what makes it quite a difficult problem to solve. And this is because you cannot feel your bones becoming weak. And there are no symptoms or warning signs of this condition. So patients with osteoporosis will not know that they have this problem until they actually break their bones or have a fracture. So who are the people who are at an additional risk for osteoporosis? Those who have certain medical conditions such as kidney or liver problems, those who have cancer, rheumatoid arthritis, lupus, those who have problems in their digestive system like the stomach or the intestines, and multiple myeloma. Similarly, there are certain lifestyle risk factors that you can change from today itself. The first one is people who live a sedentary lifestyle. So those individuals who are not very active or who are sit for a long time during the day and do not exercise or walk much, they are at a higher risk for osteoporosis. Similarly, those who have a low calcium and vitamin D intake, who have low body weight, who have excessive alcohol consumption and tobacco use. At the same time, there are certain medicines which, if you have been taking for a long time, can also lead to osteoporosis. These include steroid intake, certain cancer medicines, acidity tablets, blood thinners, medicines for diabetes, thyroid, and epilepsy, and even certain depression and anxiety medicines can cause osteoporosis. So how to prevent osteoporosis? Here I'll be talking about some simple measures you can take, and subsequently we have our expert faculty who will discuss all these in detail in the next few talks. So in your diet, especially women above the age of 50 should consume about 1,200 milligrams of calcium per day. And good sources of calcium are dairy products like milk, cheese, yogurt, dark green leafy vegetables, broccoli, fish like salmon and tuna, and soy products such as tofu. Along with calcium, you must also have a good intake of vitamin D, which is known as the sunshine vitamin, because the best source of vitamin D is natural sunlight. Now, the mistake that many patients make is that they are only taking calcium supplements or tablets, and because of this, they do not have adequate intake of vitamin D. The problem is that unless your body has a sufficient amount of vitamin D, it cannot absorb, that is, your intestines cannot absorb the calcium from your diet. And that is why you will end up having calcium deficiency also. So good sources of vitamin D include fish, egg yolk, liver, fortified milk, and cereals. You must also exercise regularly, but not just any exercise. There are three broad important categories of exercises that you need to do: weight-bearing exercises, resistance exercises, and balance exercises to reduce your risk of falling, especially as you get older. So in weight-bearing exercises, your feet or your arms are fixed to the ground or another surface. And examples of these exercises include walking, jogging, hiking, climbing staircase, dancing, and treadmill exercises. And as a result, the bones in your legs, hips, and your lower spine become much stronger because of this. An additional benefit is that it also boosts the health of your heart. In resistance exercises, they mainly improve muscle mass and then eventually strengthen the bones. So these exercises benefit the bones of your arms, legs, and your back. For these exercises, you can use free weights, wrist weights, exercise bands, or weight machines. But you can also do them at home using your body as the resistance. Another problem I want to talk about is that of osteoporotic fractures in the elderly population. So every week we have about 3 to 4 patients who are above the age of 60
who have just had a simple fall in their house or in the bathroom and fracture their hip joint. The problem with this is that 20 to 25% of these patients eventually die at 1 year, which is the sad part. And in the United States, it is said that osteoporotic hip fractures cause almost as many deaths as motor vehicle road accidents. So, what can we do to minimize these falls in the elderly population? So, you can advise the elderly people in your house to use a walker or a cane with a proper rubber tip. They can wear rubber soled shoes and avoid walking in socks. You must keep the rooms free of any clutter, like small tables or any material in between should be avoided. The rugs in the room and the bath mats should be skid proof because many a times they slip over these mats and end up having a fracture. Similarly, the staircase and all the walking ways must be well lit. You can install handrails on both sides of the steps. In this picture that I have shown, you can see that there are grab bars in the bathroom, which they can use for support while bathing or when they are in the toilet. Another important simple measure you can undertake is to keep a flashlight next to their bed. Most patients end up falling when they get up in the middle of the night to go to the bathroom or to go and drink water. And because it is dark, they lose their balance and tend to fall. So you must add more lights around your home so that all the areas are well lit. So the question you must ask yourself is that how strong are your bones and how do you know this? So to assess the strength in your bones, we do a test known as the DEXA scan, which stands for Dual Energy X-ray Absorptiometry. In this test, we use X-rays to measure the bone mineral density in the three common areas that are affected, which are your wrists, your hips, and in your spine, that is your back. And it is a quick and painless test which just takes about 10 to 30 minutes. Once you finish this test, you get your report which tells you about the T-score. So if your T-score in your report is -1 or more than that, that is in this green part, then you have normal bone mineral density. So that means you have good bone strength. If it is between -1 to -2.4, that is in this orange part, then you have a condition called as osteopenia, which is basically mild or the beginning of osteoporosis. But if your T-score is -2.5 or less than that, then you are diagnosed with osteoporosis. So who should get a DEXA scan? All postmenopausal women who are less than 65 but have the risk factors that I mentioned, they must get a DEXA scan. All women who are above the age of 65, regardless of the risk factors, should get a DEXA scan. And postmenopausal women with fractures or women with any medical conditions associated with osteoporosis should get a DEXA scan to assess the strength of their bones. So the take-home message that I would like to give you is that you must notice that there is a high incidence of osteoporosis in women. With proper nutrition, that is adequate intake of calcium and vitamin D, with lifestyle changes and regular exercise, you can keep your bone health in a very good manner. Fall prevention to help prevent fractures in the elderly is an important step you can take, especially if you have elderly people in your house or close relatives. And timely consultation with your doctor and a DEXA scan is also very important. Thank you. Thank you, Dr. Sahil, for giving us such an informative insight towards how strong really our bones are. So our audience has two questions for you. The first question is, when you come across patients, what are these early signs and symptoms they come up with? And you can kind of, through the history or the symptoms, you can say that they may be having osteoporosis. Right. So as I mentioned that the
unfortunate part about osteoporosis is that it is a silent disease. So there are no real warning signs that people can pick up based on their hip pain or knee pain. Many a times it is only an incidental finding that when they come to the OPD with some problem and we do an X-ray, we notice that they actually have osteoporosis. So the only message that I can give here is that you must do your timely DEXA scan and follow the preventive measures. And if you are above the age of 50 or 65, then you should get a DEXA scan at the appropriate time to minimize your risk of future fractures. Thank you, Dr. Sahil. And the second question we have for you is, in your routine practice, how often do you see that women or people of this age group are really aware and they come to you seeking health information related to osteoporosis and doing a regular assessment of DEXA or bone mineral density, how we commonly call it as? So again, the unfortunate part is there is no awareness amongst people. And I would say about less than 5% of patients actually know about osteoporosis and come in wanting to know their bone strength and take any preventive measures. So if there is one take-home message I can give you today, it is to consult your doctor at the right time and take your bone health seriously, because there is not a lot of awareness of this. And by the time you know this problem, it will be too late. Definitely, definitely. So हम सब आज से ही ये प्रण ले कि सही वक्त पे अपना बोन मिनरल डेंसिटी चेक करवाएं और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से विशेष फॉलोअप ले तथा कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स की शुरुआत करें और एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दे, जिसके बारे में बताएंगे हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट. थैंक यू डॉक्टर साहिल.